Good afternoon to all of the students. So we are on the current electricity third chapters. So last time we discussed about the different symbols about the electric cells, open key, plug key, light bulb. Now we will see now conductor and the insulators. आज हम लोग देखेंगे conductor और insulators क्या होता है. Now just a simple an example, material. Page number 36. Material, copper, aluminium, wires are there, glass rods, rubbers. You just see the electric cell 3.6 figures. K is in a plug key, you have seen positive negative sign, that is the battery sign. A as an ampere current sign, and A and B you have seen that connected from the plug key, then the battery, and then the ampere, that is current. वायर है वो एक तरह का. This is a connection as shown in the 3 point. The first connect a copper wire. First हम लोग क्या करेंगे, copper wire को connect करेंगे A और B. That first we will connect with the current, that is an ampere. Then we have to connect with the battery, and then they are telling us in a plug key. तो then a play बोलते ना in place of the copper wire connect aluminium wire. Copper wire के साथ हम को क्या connect करना है, aluminium wire connect करना है. Glass rod है, glass rod is there, rubber is there, etc. different things once at a time. या तो पहले aluminium wire connect करो, फिर या तो glass rod connect करो, फिर rubber connect करो, one टाइम करके. मतलब copper wire अपने ले लिया, connect कर दिए, तो उसके साथ क्या करेंगे, एल्यूमिनियम एक बार कनेक्ट करें, फिर एक बार ग्लास रॉड कनेक्ट किए, एक बार रबर कनेक्ट किए, लाइक दिस वे. एंड देन वी हैव टू मेजर द करंट, एंड देन वी हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ द करंट, इन विच केस द करंट इज मोर. इन द केस ऑफ द व्हाट, एल्यूमिनियम वायर, ग्लास रॉड और रबर, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. Now conductor and the insulators. Conductor means a copper wire, aluminium wire, all this kind of the wire that you are looking, that copper wire I am telling, that we are telling as a conductor. और insulator मतलब simple an example, जो copper wire के पे जो connecting है बोलते हैं ना, covering आता है प्लास्टिक की, that is you have seen, that is a red, blue, green, black, that kind of the covering is there, that we are telling as an insulator. उसके अंदर insulator के अंदर क्या रहता है, conductor रहता है, जो हम लोग copper, aluminium ये सब बोलते हैं. So that we have learned resistance and electric current to an electric current. Then we will divide into conductor and insulator. That conductor and insulator we will connect into the bad conductors. बोलते हैं ना, जो conductor insulator को हम लोग observe करेंगे bad conductors में. Now first conductor, those substance which have a very low resistance are called as a conductor. जो substance का बोल रहा है ना, जो एकदम resistance क्या रहेगा, एकदम low रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, conductor बोलेंगे. And that from conductor we can say current are flowing easily. उसमें से क्या बोलते हैं, current easily flow होता है. Now that current that flow easily through such materials, that materials are of the different types, copper, aluminium, like this way. Now here they are telling those substance we have extremely high resistance. Now अब जिसका बोलते हैं ना, जो substance का resistance एकदम high रहता है, and through which we can say current cannot flow, and from that we are telling as a current are not flowing, that we are telling as an insulators. जैसे तुम लोग ने देखा होगा ब्लैक कॉपर बोलते हैं ना, वायर्स के ऊपर क्या आता है, ब्लैक कोटिंग रहती है, रेड कोटिंग रहती है, ग्रीन कोटिंग रहती है, like this way different coatings are there. And from in that we have seen the conductor, जो कि बोलते हैं ना कॉपर हम लोग बोलते हैं. तो इसके अंदर से बोलते हैं ना, इंसुलेटर के अंदर से बोलते हैं ना, करंट फ्लो इजीली नहीं होता है, इसके लिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं. उसके ऐसे बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस एकदम हाई होता है. बिकॉज ऑफ दैट हाई रेजिस्टेंस दैट वी कैन से करंट कैनॉट फ्लो. Now why are some resistance conductors, why are some are while are other insulators? क्यों सब बोलते हैं ना, कुछ कंडक्टर्स रहते हैं और कुछ इंसुलेटर्स रहते हैं. एंड why they are telling, why can our body conduct electricity? अपने बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? Make a list of that conductor and insulator you see in your surrounding. जैसे कि मैंने बोला कंडक्टर और इंसुलेटर्स की सराउंडिंग देखो ना, तुम्हारे सराउंडिंग में रहेगा. जैसे कि इंसुलेटर का मैंने एग्जांपल बता दिया, ब्लैक है, हाँ, रेड है, ग्रीन है, लाइक दिस वे दिस काइंड ऑफ द इंसुलेटर्स आर द प्लास्टिक इंसुलेटर बोलते हैं ना, एक तरह का प्लास्टिक की तरह रहता है. उसके अंदर क्या रहता है, कंडक्टर रहता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, लाइक दिस वे, आयरन. तो जस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दी हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हो हम लोग की. 4 सेल ले लो, 4 सेल्स दैट इज ऑफ द ईच सेल हैज़ एन 1.5 वोल्ट. बोलते हैं ना, हर सेल कितने वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है. एमामीटर, वोल्ट मीटर, एंड द कंडक्टिंग वायर एंड द नाइक्रोम वायर तुम लोग को पता होगा, जो बल्ब के अंदर जो रहता है. And then the plug key button के अंदर. Set up the electric circuit like this way. Just see this circuit set up A B C D. This is a volt. हाँ 1.5 वोल्ट का बोलते हैं ना, ये सेल्स है, ये सब बोलते हैं ना A B C D एक तरह का सेल है, जिसके अंदर हर सेल कितने वोल्ट का है, एवरी सेल इज ऑफ द
5 volt, and then the wire is there. Then you are looking as in a K, that is the plug key. Then A is in a positive negative, ammeter is there, and the resistance sign you are looking, and the XY as in a nichrome wire. जो XY है वो नाइक्रोम वायर है. एक तरह का समझ के चलो हम लोग ने बल्ब कनेक्ट करे हैं. नाउ कनेक्ट वन ऑफ द 4 सेल्स. बोलते हैं ना पहले एक सेल कनेक्ट करो ए वाला. 3.7 फिगर ऑब्जर्व करो, वेरिफिकेशन ऑफ द होल, एंड जस्ट टेक द रीडिंग ऑफ द एमामीटर. और एमामीटर की रीडिंग लेनी है अपने को. एंड देन वी हैव वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर की रीडिंग तो तुम लोग को पता चलेगी 1.5 वोल्ट का है. एंड एंटर देम इनटू द टेबल बिलो. देन वी हैव टू एंटर इट. फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट द नंबर ऑफ द सेल. फर्स्ट सेल टू कनेक्टेड, एंड देन वी हैव टू नोट फ्रॉम द एमामीटर. एमामीटर से अपने को नोट करना है कि कितना करंट है. पोटेंशियल डिफरेंस तो 1.5 वोल्ट का ही है. एंड देन नाउ ऐड सेकेंड ऑफ द सेल. बोलते हैं ना एक एक करके बी ऐड करो, सेकेंड सेल ऐड करो, देन थर्ड सेल, देन फोर्थ सेल, एंड एवरी टाइम वी हैव टू नोट द करंट एंड वी हैव टू ऐड इट. अपने को हर बार एमामीटर से करंट पता चलेगा. नाउ जस्ट ऐड एंड देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. अपने को वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है. दैट वी अपॉन आई वी आर टेलिंग. तो रेजिस्टेंस विल कम इन ओहम. That if you can say this chart we are telling as an observation chart. Simple an example, just look the example number 1. The resistance of the filament of the light bulb is what 1000 ohm. जो resistance बोल रहा है filament bulb का 1000 ohm है. और if the bulb is fed up by the current, बोलते हैं ना जो bulb के अंदर जो current आ रहा है, the potential difference is of the 230 volt. That is V they are telling as an 230 volt. We have to note the current, how much current are there, that I we have to note. So we know the formula V equal to IR. So resistance is 1000 volt, V is how much 230 volt, resistance is 1000 ohm is there, and V is 230 volt. And then we have to note the current, that I we have to find it. I equal to V upon R. Just cancel 0 0, you will get 23 upon 100, that is 0.23 ampere. Means the bulb, the current flowing through the filament of the bulb is what 0.23 ampere. So like this way we can, some of the time we can find the resistance, some of the time we can find the filament, and the resistivity also we can find. The resistivity is what RA upon L. R is the resistance, A is the area. Now wire, you know wire is of the what, circular type. That's why area we have to find as a pi r. In place of the area we have to write as a pi r square. They will give the radius also. And everything we have to, length is there, we have to every time we have to change into the मीटर. रिमेंबर जो लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, रेडियस रहेगा, सबको अपने को किस में करना है, मीटर में करना है. मिलीमीटर से मीटर में करना है. सेंटीमीटर भी रहेगा तो मीटर में करना है. नाउ सिस्टम ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस वी विल सी. सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या रहता है. तो नाउ रजिस्टर इज टू एंडेड. बोलते हैं ना जो रजिस्टर्स रहता है यहाँ पे 2 एंडेड कंपोनेंट है. दैट गिवन रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स. जस्ट लुक, रजिस्टर इज देयर R1 and R2 and R3 that you are looking. R1 R2 R3, that is 3 resistance they given. That is a 2 end. बोलते हैं ना 2 end से बोलते हैं एक तरह से वायर कनेक्टेड है. की है K, E as in a cell. तो इन several electric devices a number of the resistors are connected together. बोलते हैं ना बहुत से different devices रहते हैं जिसके अंदर number of resistance बोलते हैं ना बहुत से different. Some of the resistance has a 1 resistor, some of resistance, कोई resistance पे 1 resistance रहता है, कोई resistance में 2 resistance रहता है. Depending on the electric device. In a computer also you will observe, TV, in the different device you will observe different number of the resistance. Now Ohm law is applicable to all such connected series. अब बोलते हैं ना resistors पे, यहाँ सब जगह पे Ohm's law आने वाला है. In all the places. Just now look, figure study 3.8, resistors in series. How the resistors in series are there. जो resistance देख रहे हैं ना R1, R2, R3 ये सब एक साथ connected है, one after another, बाजू बाजू में connected है. You can see that end of the 3 resistors are connected, so they can one after the another in single line. ये जितने भी resistor देख रहे हैं एक ही लाइन में आ रहे. And the resistor are said to be a series. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, series बोलते हैं. In such arrangement, in this kind of the arrangement, the current are flowing through each resistor. यहाँ पे current क्या होता है, easily flow होता है. यह current क्या हो जाता है, एक साथ में flow होता है, same current flow होता है सब जगह पर. In every resistance the current will be same. The value of the current is I. Potential difference from C to D. जो C to D में जो potential difference है मेरा क्या है, V है. Now the 3 resistors are there. यहाँ पे 3 resistors देख रहे, क्या है वो R1, R2, R3. और वोल्ट भी क्या अपना आएगा, V1, V2, V3. यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा क्या रहेगा, V1, V2,
V3, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होने वाला है यहाँ पर, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होने वाला है, बट द करंट इज सेम। बोलते हैं ना तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा बट वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एज एग्जाम्पल V इक्वल टू, जस्ट लुक, V1 प्लस V2 प्लस V3, RS इज एन सीरीज साइन, रजिस्टर्स ऑफ द सीरीज साइन। बोलते हैं ना जो S दिया है सीरीज़ की साइन दिया है, मतलब जो RS बोला है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ बोला है, जो कहाँ से कहाँ तक है, C से लेके D तक, फ्रॉम C टू D रजिस्टर साइन आर देयर, RS वी आर टेलिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ यू नो वेरी वेल V इक्वल टू IR, बट ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस तो RS है, तो ये वी विल राइट एज है ना V इक्वल टू IRS, हाँ V इक्वल टू IRS। तो नाउ 3 वोल्टेज आर देयर, तो फर्स्ट V1 IR1, then V2 IR2, V3 IR3, this all value we have to put in the equation number 1. तो first V was there, तो in place of V we will write IRS, in place of the V1 we will write IR1, then V2 that is IR2 and V3 is what, IR3. Now look here current is same, वो बोलते हैं ना सब जगह पे करंट सेम है, इसके लिए उसने I1 I2 I3 ये नहीं लिखा, इतना याद रखना। हाँ, he has not written I1 I2 I3 because the current are flowing same in all the 3 registers. Now current is same, तो current will be out। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट में, राइट हैंड पार्ट में से I कॉमन निकालेंगे, I कट मार देंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, एंड यू विल गेट द रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह भी टेकन ओनली 3 रेजिस्टेंस। हाँ, ये सर्किट में हम लोग ने 3 रेजिस्टेंस लिया है, नेसेसरी नहीं कि 3 रेजिस्टेंस ही हो, कि बहुत सारे रेजिस्टेंस रह सकते हैं, देयर इज नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस, that will be R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5, like this way there are number of the resistance are there. So that's why they are telling if n resistance are connected in series, बोलते हैं ना अगर n resistance connected है तो RS equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 till Rn are there. तो ना if resistors are connected in series, अगर बोलते हैं ना resistance एक तरह के series में connected है, the same current flow through each resistance, सारा बोलते हैं ना resistance में एक ही जैसा current flow होने वाला है, the current will be same. The effective resistance of the resistor is equal to the sum of their individual resistance. Now the effective resistance मतलब RS की जो बात कर रहा है ना, तो RS will be sum of the resistance. तो sum of the resistance में क्या आएगा, RS के R1 plus R2 plus R3. Now here the potential difference between the two extreme of the arrangement. Here potential difference are their voltage. यहाँ पे जो दो एंड के जो वोल्टेज में कनेक्टेड है, बोलते हैं ना बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्सट्रीम ऑफ द अरेंजमेंट। यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो द सम ऑफ द डिफरेंस, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 इंडिविजुअल, मतलब मान के चलो V1 है तो वहाँ पे IR1 आएगा, V2 है तो वहाँ पे IR2 आएगा, दैट्स वी हैव सीन इन द अबाव केसेस। दैट मीन्स V इक्वल टू वॉट, V1 प्लस V2 प्लस V3, योर वोल्टेज विल बी डिफरेंट, हाँ वोल्टेज विल बी डिफरेंट बट योर करंट विल बी सेम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर, जो रेजिस्टेंस है ना RS वो लार्जर ही, बड़ा ही रहने वाला है कंपेयर टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, बिकॉज RS से क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना R1 होगा उतना RS नहीं होने वाला है, RS अक्सर ग्रेटर ही रहने वाला है। रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं ना RS जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, क्योंकि RS से क्या कंपेयर करके क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल रहा है अपने को। And now the resistance, this arrangement is used to increase the resistance in circuit. ये arrangement से क्या होता है, अपना resistance increase हो जाता है सर्किट में। Now when resistance are connected in series, पता है जब resistance हम लोग कनेक्ट कर रहे थे सीरीज में तो they are connected one after another, बोलते हैं ना एक बोलते हैं ना एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, one after another we are connecting. If any of one them does not function, बोलते हैं ना अगर मान के चलो R1 फंक्शन नहीं कर रहा है तो R2 और R3 भी वर्क नहीं करेगा। द सर्किट ब्रेक्स एंड देयर द करंट इज़ नॉट फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से क्या होगा, सर्किट ब्रेक होगा एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी नॉट फ्लोइंग, मीन्स RS इज देयर, इन द RS R1 प्लस R2 प्लस R3 इज देयर, बट R1 विल नॉट वर्क, दैट मीन्स R2 एंड R3 विल नॉट गेट द इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से R2 और R3 को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली है। ना इफ़ 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर 2 बल्ब में कनेक्ट कर रहा हूँ सीरीज में, दे विल बोथ गिव द लेस लाइट, बोलते हैं ना दोनों में क्या होगी, लाइट लेस रहेगी। देन इफ़ दे हैड बीन कनेक्टेड इंडिविजुअली, अब इसलिए अपने को क्या होगा, इंडिविजुअली अलग अलग कनेक्ट करना पड़ता है। एंड इफ 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन वी आर कनेक्टेड दिस काइंड ऑफ द 3 बल्ब्स इन द सीरीज, द लाइट आउटपुट विल डिक्रीजेस, जो उसकी लाइट रहेगी ना पूरी
डिक्रीज़ हो जाएगी. थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. इसमें क्या रीज़न रहता है? बिकॉज जो वोल्टेज इज़ टोटली ब्रेकिंग. जो वोल्टेज रहता है ना, इसमें करंट तो सब जगह पे सेम फ्लो हो रहा है, बट जो वोल्टेज रहेगा ना सब इंडिविजुअल बल्ब में ब्रेक होते जाता है. बोलता है ना, जो वोल्टेज रहेगा सारे बल्ब में, वोल्टेज क्या होगा, सब लेस होते जाएगा. ये डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि 1 मीटर बॉक्स है अपना, 1 मीटर बॉक्स पे 3 मीटर लगे हुए हैं. वो 3 मीटर से ही अपने 3 घरों में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है. तो तीनों घर हम लोग देखते हैं ना सीरीज़ में ही कनेक्टेड रहते हैं, R1, R2 एंड R3. बट इन आवर हाउसेस वी हैव सीन ट्यूबलाइट इज़ देयर, बल्ब इज़ देयर, द डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स आर देयर. अगर एक ही घर में हम लोग बहुत सारे बल्ब्स कनेक्ट कर देंगे एक साथ में, तो वोल्टेज अपने घर में तो ज़्यादा नहीं रहता है. तो जितना वोल्टेज रहेगा उतना ही, बोलते ना इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, बोलते ना उतने ही बल्ब ग्लो होने वाले. बट उसकी लाइट क्या हो जाएगी, बल्ब्स की कम होते जाएगी. एंड वन ऑफ द टाइम इफ मोर बल्ब्स वी आर यूजिंग, तो द लाइट विल, वी कैन से द बल्ब विल ऑल्सो नॉट वर्क. Then it is coming as an about resistance in parallel. These things we will discuss in the next lectures. और मुझे बताना, just tell me where resistance in series are using in day to day life. Resistance in series कहाँ पे यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में. Just give me the answer in the homework time.